કરો નૈસર્ગી આગે. હા, બેનનો પ્રણામ રાજા. હા, જીવના ધર્મ અંતર્ગત આપણે પ્રાણ ધર્મનું નિરૂપણ આપણે અહીંયા જોઈ રહ્યા હતા. અહીંયા પ્રાણ ધર્મનું નિરૂપણ થાય છે. તો કોઈને એવી શંકા થાય કે બ્રહ્મ પ્રકરણ તો આ નથી, તો અહીંયા એનું સમાધાન અહીંયા આપ્યું છે એમ સમજવું જોઈએ. તો જીવના ધર્મ સાથે પ્રાણના ધર્મ પણ અપાય છે. જેવી રીતે આયુષ્ય વધારે છે, જ્ઞાન આપે છે, એ બધા જે ધર્મ છે એ બી અહીંયા લેવાય છે કે જીવ બ્રહ્મના આશ્રિત હોવાના લીધે તે અપાય છે. પ્રાણનો એની સાથે યોગ છે. આથી પ્રાણ શબ્દને આપણે બ્રહ્મ સમજવું જોઈએ. તેથી આ બધા બ્રહ્મના ધર્મ છે. એથી એ પ્રાણ છે એ બ્રહ્મ છે એવું પ્રતિપાદન કરાયું છે. આ અધિકરણ છે એ આગળ જે બી આપણે અધિકરણ જોયા એ બતાવેલા બધા અધિકરણનું અહીંયા કન્ક્લુઝન છે એમ આપણે સમજવું જોઈએ. હવે ચોથું સૂત્ર, જીવ મુખ્ય પ્રાણલિંગાનેતિ ચેન્નો પાસા ત્રૈવિધ્યાદાત્રિત્વા દિહત્યોગાત. એટલે અહીંયા એમ કહી રહ્યા છે કે જીવની મુખ્યતા છે પ્રાણલિંગની નહીં. અહીં પૂર્વ પક્ષ બે શંકા કરી રહ્યા છે કે આખા પ્રકરણમાં બ્રહ્મ ધર્મની પ્રધાનતા છે, એની સામે જીવ અને પ્રાણ ધર્મ સ્વીકારવામાં બાધા ઉપસ્થિત થાય છે. કારણ કે અહીંયા પૂર્વ પક્ષ એમ કહી રહ્યા છે કે જીવનું ઇમ્પોર્ટન્સ હોય છે. કેમ કે જીવ ઇન્દ્રિયો દ્વારા દરેક પ્રકારના જ્ઞાનને તે ધારણ કરે છે. જીવના દ્વારા પ્રાણ ધારણ થાય છે અને પ્રાણ ધારણ થાય ત્યારે શરીર ધારણ થાય છે અને શરીર દ્વારા જ્ઞાન થાય છે ત્યારે જીવની મુખ્યતા રહે છે, બ્રહ્મની નહીં એમ પૂર્વ પક્ષ કહી રહ્યા છે. તો એમાં એનો ઉત્તર આપી રહ્યા છે કે ન વાચમ વિજિજ્ઞાસિત ઇત્યાદિમાં વાણી આદિ ઇન્દ્રિયોના અધ્યક્ષ મુખ્ય જીવને બતાવ્યું છે. એટલે શરીર ધારણ કરવું એ પ્રાણના મુખ્ય ધર્મ બતાવ્યું છે એમ પૂર્વ પક્ષ કહે છે. હવે સમાધાન આવશે કે એવી આશંકા ન કરવી જોઈએ, કેમ કે ઈશ્વર સ્વયં જ 5 રૂપોમાં વિભક્ત થઈ આ શરીરને ધારણ કરે છે. આ અધિકરણમાં પ્રથમ પાદનું અંતિમ આ જે અધિકરણમાં આ જે સૂત્ર છે એ અંતિમ સૂત્ર છે. આગળના સૂત્રમાં આપણે જોયું કે મહાપ્રભુજીએ વામદેવ ઋષિનું એક્ઝામ્પલ આપીને આપણને આજ્ઞા આપી કે ઇન્દ્રએ પોતાને સંબોધન કરી ઉપાસના સંબંધી કોઈ ઉપદેશ આપ્યો છે તેને પણ ઇન્દ્રની બ્રહ્મસ્થ અવસ્થા છે એમ સમજવું જોઈએ, કે ઇન્દ્ર એ બ્રહ્મસ્થ અવસ્થા સુધી પહોંચી ગયા છે એમ આપણે સમજવું જોઈએ. જે એ બ્રહ્મના સંદર્ભમાં આપણે એ વાત લેવી જોઈએ. જીવ કે દેહના સંબંધમાં આપણે એ ન સમજવું જોઈએ. આ નિર્ણય પ્રદાન કર્યા પછી મહાપ્રભુજી જીવ અને પ્રાણના એક્યવાળા વિષયથી આપણને એ બતાવે છે કે ત્રીજા અને ચોથા સૂત્રમાં કે કેવી રીતે એક્ય થઈ રહ્યું છે એ આપણને સમજાવ્યું. સૂત્ર જીવ આપણે જે સૂત્ર છે કે જીવ મુખ્ય છે, પ્રાણલિંગ નથી. એમાં જે વિષય છે એ જીવની મુખ્યતા છે, પ્રાણલિંગની નથી. એ અર્થ એનો થયો. જે આપત્તિ ઉપસ્થિત થઈ હતી કે એક જીવ થઈ ગયો, એક પ્રાણ થઈ ગયો અને જીવ અને બ્રહ્મની એક્ય થઈ ગઈ, એમ ત્રણ આપણને પોસિબિલિટી થઈ ગઈ. તો જીવાત્મા દેહને ધારણ કરે છે તો 3 તત્વ થઈ ગયા. તો પછી એને કેવી રીતે સમજવાનું? તો એની ઉપાસનાની આપત્તિ થઈ ગઈ કે ઉપાસના કોની કરવી જોઈએ અગર 3 થઈ ગયા, જીવ, બ્રહ્મ અને પ્રાણ? તો એમ નથી, કેમ કે પ્રાણ જીવની લિંગ ન હોવાથી એનાથી એની આ ઉત્પત્તિ નથી. કેમ કે આપણને પાછળના સૂત્રથી સમજાયું કે પ્રાણ એ જીવ પર આશ્રિત હોવાથી પ્રાણનો જીવ સાથે યોગ હોવાના કારણે એવું અહીં આ સૂત્રનો અર્થ છે. હવે જે પ્રાણ છે એ પ્રજ્ઞા એટલે શું? તો જ્ઞાન, ચૈતન્ય. એ જે પ્રજ્ઞા છે એ પ્રાણ છે એવું કોઈ શ્રુતિ વચન છે. એમાં પણ પ્રજ્ઞા વચ્ચે સહવૃત્તિ દેખાઈ ગઈ કે જીવ પ્રાણ ધારણ ન કરે ત્યારે એની ક્રિયારતા થાય છે અને જીવ પ્રાણ ધારણ કરે ત્યારે જીવના સૌથી નજીક છે એ પ્રાણ જ છે એમ સમજવું જોઈએ. એટલે એની એકતા માનવી જ સંગત છે. એ બંને સાથે ઉત્ક્રમણ કરે છે. એટલે જીવ અને પ્રાણ બંને ત્યાગ સાથે કરે છે અને સાથે છોડે છે. એ બ્રહ્મની બ્રહ્મથી એકદમ અલગ નથી. આથી એમ નહીં કહી શકાય કે આ પ્રકરણમાં જીવ અને મુખ્ય પ્રાણનો જ ઉલ્લેખ છે અને આ બ્રહ્મ પ્રકરણ નથી એમ આપણે ન સમજવું જોઈએ. પણ આનું કયા રૂપમાં ઉલ્લેખ છે એ આપણે વિચાર કરવું જોઈએ, જે મહાપ્રભુજી આપણને સુંદર રીતે સમજાવી રહ્યા છે. હવે 3 ક્વેશ્ચન પ્રેઝન્ટ કરે છે કે શું જીવ અને મુખ્ય પ્રાણવાચી બ્રહ્મ ધર્મોની જીવ પડતા છે? અર્થાત
બધા ધર્મ શું જીવ પરક છે એમ સમજવું જોઈએ, જીવ અલગ છે? અથવા તો બીજી પોસિબિલિટી એવી થઈ શકે કે શું ત્રણેયની સ્વતંત્રતા છે એટલે જુદા જુદા છે, અથવા તો જીવ અને પ્રાણની બ્રહ્મધર્મ રૂપમાં વિવૃત્તિ છે? તો એનો આન્સર સમાધાન આપી રહ્યા છે કે પ્રથમ વાતને તો પહેલા જ પરિહાર કરી દીધો કે બ્રહ્મધર્મોની તો બ્રહ્મધર્મ ને તો અન્ય કોઈના પણ ધર્મના રૂપમાં સ્વીકારી જ ન શકાય, કારણ કે બ્રહ્મના જ ધર્મ જીવમાં આવ્યા છે, જીવના ધર્મ બ્રહ્મમાં ન આવી શકે, એમ આપણે સમજવું જોઈએ. પછી દ્વિતીય પક્ષમાં તો દૂષણ બતાવી રહ્યા છે કે એવું અગર માનીશું કે અલગ અલગ છે પ્રાણ, જીવ અને બ્રહ્મ, તો આપણે ઉપાસના 3 પ્રકારની સિદ્ધ થઈ જશે અને આના સ્વરૂપ જે બી પ્રકાશક વાક્ય છે એમાં બી આપણને ભેદ મળી જશે. આથી દ્વિતીય પક્ષમાં પણ સંગત નથી લાગી રહ્યો. હવે તૃતીય પક્ષ જ સુસંગત છે કે આથી તૃતીય પક્ષ જ આપણે સાચો માનવો જોઈએ કે જીવમાં બ્રહ્મના ધર્મ ઉત્પન્ન એટલે કે આવી શકે છે, એ વિરુદ્ધ નથી, એ જ બરાબર છે. કેમ કે પરમાત્મા છે એ જીવના જીવ એ પરમાત્માના આશ્રય રૂપ છે, જીવ પ્રભુનો અંશી છે, પ્રભુ અંશી છે ને જીવ અંશ છે, એટલે જીવના ધર્મ પણ ભગવત આશ્રિત જ છે. બીકોઝ જીવ એ પ્રભુનો ચૈતન્યનો અંશ છે, તેથી જીવના જેટલા પણ ધર્મ છે એ બ્રહ્મના જ હોઈ શકે. હવે જે સૂત્ર છે એમાં જે ઇહ પદ જે આવી રહ્યું છે એ બે જીવ અને મુખ્ય પ્રાણમાં બ્રહ્મવાતમાં સંબંધ હોવાથી એક્ય છે. કેવી રીતે? તો એમ સમજવું જોઈએ કે જીવ એ બ્રહ્મનો ચૈતન્ય અંશ છે અને જે પ્રાણ છે એ બ્રહ્મનો સત અંશ છે, એમ સમજવું જોઈએ. આમ બંને ભેગા થઈને બ્રાહ્મિક દ્રષ્ટિથી એક્ય છે એમ સમજાવી રહ્યા છે મહાપ્રભુજી કે મુખ્ય પ્રાણમાં જે બ્રહ્મ ધર્મનું જે આવી રહ્યું આરોપ થાય છે એ કેવી રીતે આરોપ થાય છે? તો અપરિચ્છિન્નનું જ્ઞાન એ આપણને મતલબ એ અપરિચ્છિન્નનું જ્ઞાન થઈ જાય છે કે હું મનુ છું, હું સૂર્ય છું, એવું જ્ઞાન થઈ રહ્યું છે કે આમ જે વ્યષ્ટિ રૂપ છે એ સમષ્ટિ રૂપ કાર્ય થઈ જાય છે. આમ એ થઈ રહ્યું છે એ કેવી રીતે થાય છે? તો એમ કહી રહ્યા છે કે એ પણ જીવના યોગથી જ થાય છે. આથી બ્રહ્મ ધર્મ પણ ભગવત ધર્મથી વિરુદ્ધ નથી કે પ્રાણનો ભગવત સંબંધ હોવાથી એના ધર્મનો પણ ભગવત સંબંધ થાય છે. તેથી એમ કેવું સમીચીન એટલે એમ કેવું સાચું હશે કે વસ્તુ તો બધું બ્રહ્મ ધર્મ જ છે, કોઈ બી અન્ય ધર્મ નથી. કારણ કે ચૈતન્ય હોય, ચાહે સદધર્મ હોય, ચાહે પ્રજ્ઞા હોય, ચૈતન્ય હોય, જે પણ હોય એ બધું ભગવત ધર્મ છે, જીવનું ધર્મ નથી, એમ સમજવું જોઈએ. આથી જે છે એ બધું બ્રહ્મ આશ્રિત જ હોવાથી આપણને દેખાઈ રહ્યું છે. બ્રહ્મસૂત્રના જે દ્વિતીય અધ્યાયના તૃતીય પાદમાં પરાતુ તચ્છતે સૂત્રમાં પરબ્રહ્મના સકાશથી જ જીવોનું કર્તૃત્વનું નિરૂપણ કરાયું છે. તે કર્તા બને છે, ભોગતા બને છે, આંશિકથી એના ધર્મથી થાય છે. મુખ્ય પ્રાણનું પણ કર્તૃત્વ પણ પરબ્રહ્મના સકાશ સંબંધથી જ થાય છે. સુષુપ્તિ એટલે ગાઢ નિંદ્રા છે અને સંપત્તિ એટલે જે નિર્વિકલ્પ જે સમાધિ છે એ જીવના બ્રહ્મ આશ્રિત્વથી જ થાય છે. કેમ કે આ જે અવસ્થા છે એમાં બ્રહ્મ સાથે એક્ય નથી થતું, પણ અભેદ રહે છે. કારણ કે અહીંયા પ્રભુ અહીંયા જે ઐચ્છિક ભેદ જે આપણે દેખાઈ રહ્યા છે એ પણ આ સ્થિતિમાં ઈચ્છિક ભેદ બી નથી અહીંયા પ્રભુ એટલું પ્રભુ સાથે સિમિલર થાય છે કે પ્રભુ ઐચ્છિક ભેદ બી નથી રાખતા, એટલે જ આને આધ્યાત્મિક અને આધિદૈવિક સ્થિતિ કહી છે. પ્રાણનો તો સંયોગ થાય છે કેમ કે આથી એ સિદ્ધ થાય કે સમસ્ત ધર્મ બ્રહ્મના જ છે. ક્રિયા અને જ્ઞાન શક્તિ છે એ બી ભગવદીય જ છે. આનું દેહ સાથે જ્યારે એનો ત્યાગ કરે છે એ જીવ છે એ બ્રહ્મનો અંશ છે, તેથી તે થાય છે. ત્યારે હવે કોઈ એમ શંકા કરે કે પ્રાણસ્થાનું ગમાત સૂત્રમાં તો પ્રાણ શબ્દથી બ્રહ્મનું જ પ્રતિપાદન કર્યું છે, તો પછી અગર એ બ્રહ્મના ધર્મ હોય તો ઉત્ક્રમણ એટલે કેવી રીતે એ ત્યાગ એનો કેવી રીતે સંભવ છે, એ કેવી રીતે કહી શકાય? તો એનું સમાધાન આપે છે કે આ પ્રસંગમાં ધર્મી અને ધર્મની એકતા અને ભિન્નતા બતાવી છે કે પ્રાણ ઇક્વલ્સ ટુ બ્રહ્મ બી હોઈ શકે, કાં તો પ્રાણ નોટ ઇક્વલ ટુ બ્રહ્મ બી હોઈ શકે. તો ઇટ કેન બી ઓર ઇટ કેન નોટ બી. તો રેફરન્સ ટુ કોન્ટેક્સ્ટ રીતે આપણે સમજવું જોઈએ કે જેવી રીતે પ્રાણો વા અસ્મિન પ્રજ્ઞાત્મા ઇત્યાદિ વાક્યમાં કીધું છે એમાં આપણે સમજવું જોઈએ કે આમાં ક્રિયા જ્ઞાન શક્તિનું નિર્દેશ કરાયું છે.
એમ સમજવું જોઈએ કે યો વે પ્રાણ સા પ્રજ્ઞા ઇત્યાદિ વાક્યમાં પરસ્પર એક એકના ધર્મની પ્રશંસા કરતા પ્રકરણનું ઉપસંહાર કર્યું છે. હવે આ જ પ્રકરણમાં જીવ અને પ્રાણનું ઉત્ક્રમણ અને પ્રવેશ પણ સાથે થાય છે એવું કીધું છે અને શરીરમાં બંને સાથે પણ રહે છે, પ્રાણ અને જીવ. આમ સુષુપ્તિ, મૂર્છા, મરણ અવસ્થાઓમાં પણ ઇન્દ્રિયોની પ્રાણ આધીનતા બતાવીને પ્રાણ અને પ્રજ્ઞાની એકતાનું પ્રતિપાદન કરીને ઉપસંહાર કરે છે. હવે આ પ્રકરણમાં જ જ્ઞાન શક્તિનું ઉત્કર્ષ બતાવે છે કે અગર જ્ઞાન નહીં હોય તો ક્રિયા બી ન થઈ શકે, કારણ કે બધી ક્રિયારતા જ્ઞાનથી જ આવી છે. પણ ક્રિયા અને જ્ઞાન રૂપ બધું ભગવાન જ બન્યા, બધું ભગવાન જ છે એવું પ્રતિપાદન કરીને પ્રભુ આટલામાં જ, પણ આપણે એવું ન સમજવું જોઈએ કે પ્રભુ આટલામાં જ સીમિત છે, મતલબ પ્રભુ આનાથી બી અધિક છે. આવો ભાવ બતાવતા અદ્વૈત ઉપાસનાનું વિધાન કર્યું છે. આનાથી સિદ્ધ થાય છે કે જળ જીવરૂપ હોવાથી સર્વાત્મક બધું પ્રભુ જ છે. આ જ મહાવાક્યનું તાત્પર્ય છે. રાજા સંપન્ન થયું વસ્તુ. ક્ષમા. सुंदर. किसका क्रम है आगे? हाँ प्रीतिबेन. હા રાજા, દંડવત પ્રણામ. મારો છે હા હવે. હા કરું શરૂઆત? હા કરું છું. રાજા दंडवत प्रणाम राजा. हाँ प्रणाम राजा. दूसरे ये ब्रह्म, ये वल्लभ वेदांत के प्रथम अध्याय के दूसरे पाद की शुरुआत करने से पहले मैं थोड़ा मैंने जो केदारनाथ मिश्रा की जो समीक्षा पुस्तक है उसमें से थोड़ा विषय लिया है. मेरा खुद का रिवीजन और विषय की कंटिन्यूटी हो जाए उसके लिए, और वेदांत अधिकरण माला में से भी थोड़ा संदर्भ लिया है तो मैं उसको पढ़ती हूँ. प्रणाम राजा. तो इसमें मैंने शुरुआत इस प्रकार से, मुझे ऐसा जिस प्रकार से समझ में आया उस प्रकार से मैं कर रही हूँ. बहुत कुछ मेरी त्रुटियां हो सकती है और इसके लिए मैं शुरू से ही क्षमा चाहती हूँ. ये विषय हमारे लिए बहुत ही नया है और बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन किया है तो पता नहीं कैसे होगा. तो मैं शुरुआत करती हूँ. व्यास जी ने, ये मैंने केदारनाथ मिश्रा में से लिया है कि व्यास जी ने सर्व वेदार्थ रूप ब्रह्म तत्व का विचार करने के लिए ब्रह्म सूत्र का प्रणयन किया है. मतलब ये ब्रह्म सूत्र का ये विषय वाक्य हो गया कि सर्व वेद का अर्थ जो है वो ब्रह्म है. तो ये विषय हो गया. और क्यों इस विषय को यहाँ पर क्यों उपस्थापित कर रहे हैं? क्योंकि यदि सर्व वेदार्थ रूप ब्रह्म के अलावा उसका अर्थ अन्य परक हो जाएगा, अन्य कोई परक हो जाएगा तो ब्रह्म की कर्तृत्व ऊपर संदेह उपस्थित हो सकता है. तो ऐसा संदेह की निवारण करने के लिए व्यास जी ने सर्व वेदार्थ रूप ब्रह्म तत्व का विचार किया है. तो यहाँ पर इस शास्त्र का विषय और प्रयोजन मुझे इस प्रकार से समझ में आ रहा है. और यह विचार व्यास जी ने 4 प्रकार से किया हुआ है. ब्रह्म का स्वरूप, उसकी प्राप्ति का साधन, उसका फल और अन्य मतों के निराकरण. इस प्रकार ब्रह्म सूत्र का 4 प्रकार से विचार किया गया है. इसलिए ब्रह्म सूत्र को चतुर्लक्षणी भी कहते हैं. तो इस प्रकार से इसका शास्त्रार्थ मुझे समझ में आता है. विषय और प्रयोजन के 60 और 4 प्रकार से उसका निरूपण किया गया है. इस प्रकार से यह शास्त्रार्थ मुझे समझ में आता है. फिर आगे उसका अध्यायार्थ जो सबने किया है, लेकिन मैं मेरे लिए कर रही हूँ कि उसमें 4 अध्याय है. उसमें प्रथम अध्याय है वो समन्वय अध्याय है. उसमें ऐसा प्रतिपादन किया गया है कि सब वेदांत वाक्यों का प्रतिपाद्य ब्रह्म ही है. और यह अध्याय प्रमाण अध्याय है क्योंकि उसमें ऐसा कहा गया है कि ब्रह्म के विषय में प्रमाण श्रुति वाक्य ही है. तो श्रुति वाक्यों के यदि ब्रह्म को यदि जानना है तो वो श्रुति वाक्य से ही अपन उसको जान सकते हैं. इसलिए प्रमाण श्रुति वाक्य ही है. और यह पहला अध्याय उसको प्रमाण अध्याय कहा गया है. फिर दूसरा अध्याय अविरोधा अध्याय है. इस अध्याय में श्रुतियों में दिखते जो परस्पर विरोध है और श्रुति विरोधी जो स्मृतियों के वाक्य है, उसका निराकरण किया गया है.
इसके द्वारा यह सिद्ध किया गया है कि प्रमेय भी ब्रह्म ही है। और तीसरा अध्याय साधना अध्याय है। तृतीय अध्याय में अंतरंग एवं बहिरंग साधन और उसके उपकरणों पर विचार किया गया है। और यहाँ पर ऐसा भी सिद्ध हो रहा है कि श्री वल्लभाचार्य जी के मत से साधन रूप भी ब्रह्म ही है। तो इस प्रकार साधन का विचार किया गया है, तो साधन भी ब्रह्म ही है। और चौथे अध्याय में फल प्राप्ति और उसके अनुभव के प्रकार का निरूपण करते करते यह बताया गया है कि फल भी ब्रह्म ही है। तो इस प्रकार उसका शास्त्रार्थ और अध्यायार्थ को ऐसे मुझे समझ में आया। तो फिर आगे अब जो प्रथम अध्याय है उसका थोड़ा रिवीजन इस प्रकार से है कि संदिग्ध वाक्यों का विचार करने के लिए सूत्रकार प्रवृत्त हुए हैं। तो यह संदिग्ध वाक्य 4 प्रकार के हैं। कार्य प्रतिपादक, अंतर्यामी प्रतिपादक, उपास्य के रूप के प्रतिपादक और प्रकीर्णक वाक्य। तो प्रथम अध्याय के 4 पाद में क्रमशः यह 4 प्रकार के संदिग्ध वाक्यों के अर्थ का निर्धारण किया गया है। तो वो निरूपण हो चुका है, उसका रिवीजन भी अभी समाप्त हुआ। उसमें प्रथम पाद में प्रकृति प्रत्यय के भेद के कारण श्रुति में उस स्थल में प्रयुक्त शब्दों के अन्य परक होने का अर्थात ब्रह्म परक न होने का संदेह का निराकरण किया गया है। तो मैंने तो फिर पूरे अधिकरण का भी वर्कआउट किया है, लेकिन वो तो जरूरी नहीं है यहाँ पर। लेकिन ऐसा समझ में आता है कि जैसे भिन्न मतलब निमित्त कारण, उपादान कारण, अभिन्न निमित्त उपादान कारण, तो इस रूप से अन्य अन्य मत में ब्रह्म के अलावा किसी और तत्व को सोचा गया है। तो जब ये ऐसा सोचते हैं तो वहां पर जिन जिन शब्दों से ब्रह्म के अलावा जिन जिन शब्दों का यूसेज हुआ है उस संदेह का निराकरण करके ब्रह्म को ही जगत का अभिन्न निमित्त उपादान कारण सिद्ध किया गया है। और वैसे जैसे प्रत्यय के रूप में जैसे प्राण, तो प्राण से भूताकाश लेना कि ब्रह्म भूताकाश लेना कि ब्रह्म को प्राण से भूत शब्द को लेना है, मतलब जड़ लेना है, या ब्रह्म को प्राण समझना है। जैसे आकाश को भूताकाश समझना है कि ब्रह्म को ही आकाश समझना है। तो उन शब्दों का खंडन करके, मतलब उस अर्थ का खंडन करके ब्रह्म को ही उन रूप से प्रतिपादित किया गया है। इस प्रकार से प्रथम अध्याय में शब्दों को ब्रह्म परक बता के ब्रह्म का कर्तृत्व सिद्ध किया गया है। तो ये प्रथम अध्याय का विषय हुआ। फिर आगे अब प्रथम अध्याय का प्रथम पाद यहाँ पर संपन्न उस प्रकार से संपन्न हुआ। फिर प्रथम अध्याय का द्वितीय पाद, उसका स्वरूप मैंने या उसका जो प्रारूप है वो वेदांत अधिकरण माला में से लिया है। यहाँ पर पुरुषोत्तम जी ऐसी आज्ञा करते हैं कि प्रथम पाद में इस प्रकार से कार्य प्रतिपादक उपनिषद वाक्यों का ब्रह्म में समन्वय सोचा गया। जगत को उत्पन्न करने के संबंध में जितने शास्त्र वचन है वे ब्रह्म में ही संगत होते हैं, अन्य कोई में नहीं, ऐसा निर्णय वहां पर किया गया। प्रकृति और प्रत्यय के भेद से जो शब्द है वे ब्रह्म के अतिरिक्त अन्य के प्रति जा रहे हैं, ऐसी शंका का निवारण करते करते ऐसा निर्णय किया गया कि यह वाक्य ब्रह्म परक ही है। ऐसा करने से ब्रह्म सिवाय कोई अन्य जगत का करता है, ऐसा विचार जो यदि किसी के मन में आता है तो वह संदेह का वहां पर निराकरण किया गया। फिर अब इसकी कोरोलरी में आगे द्वितीय पाद आ रहा है। उसमें पुरुषोत्तम जी आज्ञा करते हैं कि यहाँ द्वितीय पाद में जीव के साथ जुड़ा हुआ जो अर्थ तत्व है उनके संदेहों का निवारण किया जाएगा। मतलब प्रथम पाद में जगत के साथ जुड़े हुए जो शब्द तत्व है उसका संदेह का निवारण किया गया। अब दूसरे पाद में जीव के साथ जुड़ा हुआ जो अर्थ तत्व है उसके संदेह का निवारण किया जाएगा। और अंतर्यामी प्रतिपादक जो उपनिषद के वाक्य है उसका भी ब्रह्म में समन्वय सोचा जाएगा।
इस प्रकार से प्रथम पाद के साथ द्वितीय पाद का विषय संगत हो जाएगा। उसमें पुरुषोत्तम जी ने ये पहला जो द्वितीय पाद का जो पहला सूत्र है उस पे थोड़ा प्रकाश किया है, तो उसको एक बार देख लेते हैं। तो उसमें पुरुषोत्तम जी ऐसी आज्ञा करते हैं कि सबसे पहले द्वितीय पाद का सर्वत्र प्रसिद्ध उपदेशात अधिकरण में छांदोग्य उपनिषद में बताई हुई जो सांडिल्य विद्या है उसका विचार किया जाएगा। वहां पर सांडिल्य विद्या छांदोग्य उपनिषद में बताई गई है, वहां पर प्राण शरीर मनोमय है ऐसा कथन प्राप्त होता है, और उससे जो जीव है वो विज्ञानमय जीव को मनोमयत्व वगैरह धर्म प्राप्त होते हैं, और जो यदि जीव को मनोमयत्व वगैरह धर्म प्राप्त हो जाएंगे तो जीव में भी जगत प्रति कर्तृत्व सिद्ध हो जाएगा। तो ऐसा होने से क्या होगा कि ब्रह्म का जगत कर्तृत्व उपपन्न नहीं हो पाएगा, ऐसी आशंका यहाँ पर उपस्थित की जा रही है। और उसका समाधान पुरुषोत्तम जी ऐसा बता रहे हैं कि इसीलिए सिद्धांती का यह कहना है कि जीव की ब्रह्मत्वेन उपासना नहीं करी जा सकती है, परंतु सर्व वेदांत में प्रसिद्ध जो ब्रह्म है उसका ही उपदेश यहाँ किया गया है, इसीलिए ब्रह्म का ही उपासन करना चाहिए। इस प्रकार प्रथम सूत्र का आक्षेप का निवारण किया जाएगा। अब ये जो बात है उसको हम टेक्स्ट की मदद से समझते हैं। पुरुषोत्तम जी ने यहाँ पर उसका शंका समाधान बताया है। अब हम ये जो प्रथम अध्याय के द्वितीय पाद है उसमें पेज नंबर 105 ऊपर प्रथम अध्याय द्वितीय पाद, और ये प्रथम अध्याय का जो द्वितीय पाद है वो 8 अधिकरण वाला है और 32 सूत्र वाला है, और उसका प्रथम अधिकरण है सर्वत्र प्रसिद्ध उपदेशात। उसमें 105 नंबर के पेज पर टेक्स्ट में लास्ट में विषय वाक्य है, उसको हम पढ़ते हैं कि ऐसा वचन आता है कि यह सब कुछ ब्रह्म स्वरूप है, उन्हीं से उत्पन्न और उन्हीं में लीन है, और आगे यह पुरुष कर्ममय है, इस लोक में जैसा कर्म करता है वैसा ही मरने के बाद होता है, वह मनोमय प्राण शरीर से कर्म करता है इत्यादि। तो ये इस सूत्र का विषय वाक्य है। उसका संस्कृत ये जो पैरा है 105 नंबर का उसके ऊपर दिया गया है, उसको भी पढ़ना चाहिए क्योंकि उसका रेफरेंस आगे सूत्र में आएगा। तो इसको भी मैं पढ़ती हूँ कि सर्वम खलु इदम ब्रह्म तज्जलानि इति शांतम उपासित, और आगे अथ खलु ऋतुमय पुरुषो यथा ऋतु अस्मिन् लोके पुरुषो भवति तथेतः प्रेत्य भवति स ऋतुम पूर्वीत मनोमय प्राण शरीर। तो यह विषय वाक्य है, और विषय वाक्य में यह बात बताई गई है कि उपक्रम में सर्वखलु इत्यादि से समस्त जगत के ब्रह्मत्व को बतलाने के लिए, तो यहाँ पर कहा कि सर्वम खलु इदम ब्रह्म, तो इससे यह बात सिद्ध हुई कि समस्त जगत ब्रह्म रूप है, जगत ब्रह्मात्मक है, वो बतलाने के लिए, और तज्जलानि से अंततः उसी में ही ये जगत लीन होता है। यह विशेषण को हेतु रूप से बतलाकर विषय वाक्य में बताया क्या गया है कि तत्व रूप से उपासना का निर्देश किया गया है। तो जगत की ब्रह्मात्मकता और उसमें उसी में जगत लीन होता है, यह बताकर उपदेश यह किया गया है कि तत्व रूप से उस ब्रह्म की उपासना करनी चाहिए। तो यह विषय वाक्य हुआ। अब उसपे यहाँ पर नीचे अपन देखते हैं, उसपे संशय यहाँ पर उपस्थित हो रहा है। संशय क्या उपस्थित हो रहा है कि यह उपासना का प्रकरण है, ये जो जहाँ पर जो ये विषय वाक्य आ रहा है यह उपासना का प्रकरण है, अतः उपासना का ही वर्णन है। तो वह भी मनोमय उपासना का है जिसके वेद प्रमाण है। तो यहाँ पर जो ऊपर कहा गया कि तत्व रूप से उपासना का निर्देश किया गया है, तो कौन से तत्व का? जो मनोमय प्राण शरीर है उस तत्व की यहाँ पर उपासना का निरूपण किया गया है, निर्देश किया गया है। अब संदेह क्या होता है कि प्राण शरीर में कार्य कारण का अभेद उपचार है, तो मनोमय प्राण शरीर,
तो मनोमय प्राण शरीर जो है उसमें कार्य और कारण का अभेद उपचार है, तो कौन किसका कार्य है वो समझ में नहीं आ रहा है। तो यह मनोमय प्राण शरीर जो है उसमें जो प्राण शरीर है वो जीव परक है कि ब्रह्म परक है, तो वो समझ में नहीं आ रहा है। और आगे एक दूसरा संशय उपस्थित कर रहे हैं कि आगे के प्रकरण में उपास्य के सत्य संकल्प आदि धर्मों का उल्लेख किया गया है। इस पर यह संदेह उपस्थित होता है कि विज्ञानमय जीव को ब्रह्मत्व रूप से उपास्य कहा गया है अथवा अंतर्यामी रूप से ब्रह्म का उल्लेख किया गया है, जिसे कि पुराणों में सूक्ष्म कहा गया है। तो आज आगे भी जो सत्य संकल्प आदि धर्मों का उल्लेख आगे के सूत्र में आएगा, वहां पर उसके ऊपर भी यही संदेह उपस्थित होगा कि वह जो धर्म है वो जीव परक है या अंतर्यामी परक है। तो यहाँ पर जो प्राण शरीर है, तो मुख्य संदेह इस प्रकार से उपस्थित हो रहा है कि जो प्राण शरीर है उसको जीव परक समझना कि अंतर्यामी परक समझना, यह मुख्य रूप से यहाँ पर संदेह उपस्थित हो रहा है। और उस पर पूर्व पक्ष यह है कि उक्त प्रकरण के पूर्व वाक्य में जड़ जगत की भी ब्रह्मत्व रूप से उपासना बतलाई गई है। जैसे हमने यहाँ पर देखा कि सर्वम खलु इत्यादि से समस्त जगत के ब्रह्मत्व को बतलाया। तो जिस प्रकार से जड़ जगत की ब्रह्मत्व रूप से उपासना बताई गई है, तो जड़ जगत की ब्रह्मत्व रूप से उपासना बताई गई है, अतः जीव की ही ब्रह्मत्व रूप से उपासना मानना युक्त है। तो यहाँ पर जो मनोमय प्राण शरीर है वह जीव परक है, ऐसा समझो, क्योंकि पूर्व में जड़ जगत की उपासना बताई है, तो अब यह जीव का प्रकरण है, यह उपासना का प्रकरण है, यह जीव का प्रकरण है, इसलिए यहाँ पर जीव की उपासना है, ऐसा आप समझो। तो प्राण शरीर से यहाँ पर जीव को लेना है, अंतर्यामी को नहीं लेना है। तो एक प्रकार से पूर्व पक्ष उपस्थित हो रहा है। अब दूसरा प्रकार से भी यहाँ पर कह रहे हैं कि उक्त प्रकरण ब्रह्म परक नहीं हो सकता, क्योंकि एक दूसरी शाखा में विज्ञान ब्रह्म इत्यादि से उसे स्पष्ट रूप से विज्ञानमय कहा गया है। तो जैसे वेदांत अधिकरण माला में पुरुषोत्तम जी ने बताया कि कोई एक जगह पर जीव को भी विज्ञानमय कहा गया है, तो यदि वो विज्ञानमय जीव मनोमयत्व प्राप्त कर लेता है तो उसको कर्तृत्व प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर ये बात कह रहे हैं कि विज्ञान ब्रह्म इत्यादि से उसे स्पष्ट रूप से विज्ञानमय कहा गया है, तो जो मनोमय प्राण शरीर है उसको अन्य शाखा में विज्ञानमय कहा गया है, और विज्ञानमय तो जीव है। तो कार्य कारण का अभेद होने से जीव को ही ब्रह्म रूप से उपास्य कहा गया है। तो इस प्रकार से पूर्व पक्ष उपस्थापित हो रहा है कि मनोमय प्राण शरीर से जीव की ही उपासना का यहाँ पर उपदेश किया गया है अथवा जीव की उपासना को बताया गया है। तो इस पूर्व पक्ष का निराकरण यहाँ पर अभी कर रहे हैं कि उक्त संशय पर सर्वत्र प्रसिद्ध उपदेशात सूत्र प्रस्तुत करते हैं। तो क्या सर्वत्र प्रसिद्ध क्या है, पहले ये बात बताएंगे कि अथ खलु इत्यादि ब्रह्म वाक्य ही है। जो पूर्व पक्ष में कहा कि अथ खलु इत्यादि से जड़ जगत की ब्रह्म रूपता बताई, तो अथ खलु ब्रह्म वाक्य ही है, क्योंकि सब जगह ब्रह्म को ही अंतर्यामी रूप से बताया गया है। सॉरी, अथ खलु मनोमय प्राण शरीर, अथ खलु से यह वचन लेना है, अथ खलु मनोमय प्राण शरीर इत्यादि ब्रह्म वाक्य ही है। तो ये कोई जीव के लिए यह वाक्य का यूसेज नहीं किया गया है, यह ब्रह्म वाक्य है, क्योंकि सब जगह सर्वत्र प्रसिद्ध, सब जगह पर क्या प्रसिद्ध है कि सब जगह ब्रह्म को ही अंतर्यामी रूप से बताया गया है। इसीलिए अथ खलु मनोमय प्राण शरीर, यह वचन है वो जीव परक नहीं है, अंतर्यामी परक है। तो सर्वत्र प्रसिद्ध बात यह है कि मनोमय प्राण शरीर से अंतर्यामी को लेना है, इसलिए पहली शंका का यहाँ पर निराकरण हो गया। अब आगे बताते हैं सर्वत्र प्रसिद्ध उपदेशात, उसमें उपदेशात से क्या लेना है वह यहाँ पर समाधान कर रहे हैं कि वाक्य का जो पूर्वित पद है, तो वाक्य में पूर्वित पद कहाँ आ रहा है कि आगे जो हमने देखा संस्कृत टेक्स्ट में कि स ऋतुम कुर्वीत, तो उसमें जो पूर्वित पद है वह उपदेश परक है, उपासना परक नहीं है। तो पूर्व पक्षी ने तो पूरा
वो पूरा वाक्य का अर्थ उपासना परक ले लिया तो उससे तो अर्थ बिल्कुल बदल जाएगा कि जीव की उपासना का यह विषय चल रहा है, ऐसी बात हो जाएगी। लेकिन वाक्य का ऐसा अर्थ घटित नहीं करना है, जो कि पुरुषोत्तम जी ने हमें बताया कि यहाँ पर दूसरे पाद में अर्थ संबंधी विचार किया जाएगा। तो वह विचार कैसे किया जाएगा कि पूरे वाक्य का जो अर्थ है उस अर्थ को किस प्रकार से घटित करना है, उसमें से जो संदेह परक जो उसको अलग प्रकार से घटित करेंगे तो पूरे वाक्य का अर्थ बदल जाएगा और वो ब्रह्म परक नहीं रह जाएगा। जिस प्रकार से इस प्रकरण में बात उपस्थित हो गई कि यहाँ पर जीव की उपासना की बात आ गई, यहाँ पर उपासना की बात नहीं है, यह बात यहाँ पर बता रहे हैं कि पूर्वित पद उपदेश परक है, उपासना परक नहीं है। तो पूरा वाक्य का अर्थ बदल गया। उसमें समस्त जगत की ब्रह्मत्व रूप से परम शांत शुद्ध अंतकरण की उपासना का उल्लेख है। यानी क्या, वेदांतों में सर्वत्र ब्रह्मोपदेश की ही मनन रूपा उपासना की प्रसिद्धि है। तो यहाँ पर उपदेश क्या आ रहा है कि सर्वत्र ब्रह्मोपदेश की ही मनन रूपा उपासना करनी है, यानी जो ब्रह्म उपदेश दिया गया है उसका मनन करना है। उस प्रकार का उपदेश यहाँ पर उपासना के रूप में कहा गया है। कहीं भी जीव की उपासना की प्रसिद्धि नहीं है। तो पूरा वाक्य का अर्थ ही इधर बदल जाएगा यदि हम जीव परक इसको समझेंगे। तो इसलिए इस सर्वत्र प्रसिद्ध उपदेशार्थ सूत्र से यहाँ पर जो पूर्व पक्षी जो है वो मनोमय प्राण शरीर से जीव को लेकर उसकी उपासना को जो प्रस्तुत कर रहे हैं उसका खंडन यहाँ पर किया गया है। तो इस प्रकार और आगे यह बात महाप्रभु जी बता रहे हैं कि इसी प्रकरण में, मतलब यह जो प्रकरण चल रहा है इसी प्रकरण में, मतलब जो विषय वाक्य उपस्थित हुआ है उसी प्रकरण में आगे की शाखा में आनंदमय की उपासना बतलाई गई है। तो इसी के आगे जो पूर्व में जो चीज आती है, जो विषय उपस्थित होता है, उसी की कोरोलरी में उत्तर में उस विषय को उपस्थापित किया जाता है। तो इसके आगे के प्रकरण में आनंदमय की उपासना बतलाई गई है। इसलिए यहाँ भी हमें ऐसा समझना चाहिए कि जो प्राण शरीर है वह आनंदमय है। मनोमय प्राण शरीर से आनंदमय की उपासना मतलब अंतर्यामी की उपासना लेनी चाहिए, क्योंकि आगे के प्रकरण में आनंदमय की उपासना की ही बात आती है। तो इस प्रकार से भी पूर्व पक्षी के संदेह का निवारण किया गया है। तो जिससे यह बात निश्चित होती है कि यहाँ भी आनंदमय रूप प्राण शरीर का वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर प्रथम सूत्र संपन्न होता है। अब आगे दूसरा सूत्र आ रहा है। दूसरा सूत्र है विवक्षिता गुणोपपत्तेश्च। तो उसका पूर्व पक्ष यह है कि क्या कह रहे हैं कि ऋतुमय पुरुषः में जो ये आगे के सूत्र का जो विषय वाक्य है वह ये चारों सूत्र में आएगा। पहला अधिकरण जो सर्वत्र प्रसिद्ध उपदेशात अधिकरण है उसके 4 सूत्र है और चारों सूत्र में यही विषय वाक्य चलेगा और उसी से पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष को उपस्थापित किया जाएगा। तो ऋतुमय पुरुषः में संकल्पानुसार अग्रिम देह प्राप्ति की बात कही गई है। उसमें क्या कहा गया है कि यह पुरुष कर्ममय है, इस लोक में जैसा कर्म करता है वैसा ही मरने के बाद होता है। तो यह बात बताए कि ऋतुमय पुरुष में संकल्प अनुसार अग्रिम देह प्राप्ति की बात कही गई है। यानी जिस प्रकार की उपासना करता है उसी प्रकार का उसका अग्रिम देह उसको प्राप्त होता है। तो पूर्व पक्ष क्या कहते हैं कि जिससे लोकांतर भावी फल की बात सिद्ध होती है। यानी कोई ऐसी उपासना करेगा तो उसको अधम देह की प्राप्ति होगी, उसको मुक्त हो सके ऐसे देह की प्राप्ति नहीं होगी, तो अधम देह की प्राप्ति होगी। जिस प्रकार की उपासना होगी उस प्रकार का फल होगा। तो जिससे लोकांतर भावी फल मतलब अंततः जो ब्रह्म आनंद रूप फल मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा, लोकांतर भावी कोई लोक में कोई देह की प्राप्ति रूप फल मिलेगा। इसलिए जीव उपासना माननी ही युक्त है, ब्रह्म ज्ञान का वैसा फल संभव नहीं है। तो पूर्व पक्ष जो है वो यहाँ पर ऐसा कह रहे हैं कि यदि मनोमय प्राण शरीर से हम ब्रह्म की
मतलब अंतर्यामी की उपासना ऐसा लेंगे तो उसका फल तो लोकांतर भावी नहीं हो सकता है, उसका फल तो आनंदमय होता है। लेकिन यहाँ पर तो लोकांतर भावी फल की बात है, इसलिए यहाँ पर यह जो वचन है वो जीव परक लेना चाहिए, क्योंकि उन लोगों ने पूरे सेंटेंस का फिर से ये दूसरे सूत्र के लिए भी अर्थ बदल दिया है। तो उसका समाधान करने के लिए अब विवक्षिता गुणोपपत्तिश्च यह सूत्र आ रहा है। उसमें कैसे समाधान करते हैं कि अर्थ विवक्षित है, जो वाक्य का अर्थ है वो विवक्षित है, तो हम जैसा सोचते हैं उस प्रकार से अर्थ नहीं कर सकते हैं। ऐसा यहाँ पर महाप्रभु जी समझाते हैं कि क्या समझाते हैं कि उक्त प्रसंग में लोकांतर में वैसी रूप प्राप्ति होती है, यही अर्थ विवक्षित है। उसमें वैसी रूप प्राप्ति से यहाँ पर जिस प्रकार की उपासना की जाती है उस प्रकार का फल प्राप्त होता है, यह अर्थ विवक्षित है। और यहाँ पर तो आनंदमय की उपासना करना यह उपदेश दिया गया है, क्योंकि आगे के सूत्र से यह बात सिद्ध हुई है कि यहाँ पर मनोमय प्राण शरीर से आनंदमय को लेना है, और उपासना भी उसकी उपासना मनन रूप से बताई गई है। तो यदि जो उपासक है वो आनंदमय की उपासना करता है तो फिर फल भी उसको उस प्रकार से प्राप्त होगा, यह अर्थ यहाँ पर विवक्षित है, ये बात यहाँ पर बता रहे हैं। तो वह चाहे भगवत स्वरूप प्राप्ति हो या उनके समान प्राप्ति हो, तो फल क्या मिलेगा? यदि वो आनंद रूप की उपासना करता है तो उसको सायुज्य रूपी फल मिलेगा, या तो उसको सारूप्य रूपी फल मिलेगा। अधम शरीर की प्राप्ति के उपाय की बात मान लेना संगत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जीव की उपासना ही नहीं है कोई अन्य तत्व की उपासना ही नहीं है, तो उसको अधम शरीर की प्राप्ति क्यों होगी? क्योंकि यहाँ पर आनंदमय की उपासना की ही बात है। और आगे अभी तो विवक्षिता, तो अर्थ इस प्रकार से विवक्षित है, यह बतलाकर अभी गुण उपपत्तिश्च, उसमें गुणों की उपपत्ति से भी यहाँ पर आनंदमय ही अर्थ लेना चाहिए, यानी ब्रह्म परक ही यह वाक्य है, यह समझना चाहिए। उसमें यह कहा गया है कि सूत्र में किया गया चकार यानी गुणोपपत्तिश्च में जो चकार है, तो चकार का प्रयोग बतलाता है कि सत्य संकल्प आदि गुणों को बतलाने वाला वाक्य भी ब्रह्म स्वरूप बोधक वाक्य का ही पोषक है। तो आगे के सूत्र में हमने जो है राजा ने हमने समझाया था, बहुत अच्छी तरह से समझाया था कि यह जो सूत्र का जो उत्तरवर्ती भाग है गुणोपपत्तिश्च, उसको आगे के सूत्र से रिलेट करना चाहिए, और उसको बहुत अच्छी तरह से रिलेट करना चाहिए। तो आगे के सूत्र में ये आया संशय, ये आया था कि सत्य संकल्प आदि धर्मों का उल्लेख किया गया है, उपास्य के सत्य संकल्प आदि धर्मों का उल्लेख किया गया है, इस पर संदेह होता है कि जीव परक है या अंतर्यामी परक है। तो उसका समाधान यहाँ पर दे रहे हैं गुण उपपत्तिश्च से कि चकार का प्रयोग यह बतलाता है कि सत्य संकल्प आदि गुणों को बतलाने वाला वाक्य भी ब्रह्म स्वरूप का बोधक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो मनोमय प्राण शरीर है उससे आनंदमय यानी कि अंतर्यामी ही लेना है, यह ब्रह्म का बोधक है, इसलिए यहाँ पर जीव परक इसको नहीं ले सकते हैं, क्योंकि अर्थ की विवक्षता है और गुणों की उपपत्ति हो रही है, ब्रह्म के गुणों की उपपत्ति हो रही है, इसलिए। तो इस प्रकार से इस शंका का समाधान किया दूसरे सूत्र में। अब उसके आगे तीसरा सूत्र आ रहा है अनुपत्तितु न शारीरः, मतलब जीव की उपासना नहीं की जा। अब उसके ऊपर संशय उपस्थित हो रहा है कि केवल इतना मान लेने मात्र से, क्या मान लेने मात्र से कि जो सत्य संकल्प आदि जो गुण है वो ब्रह्म के है, तो इतना मान लेने मात्र से ब्रह्म वाक्यत्व की एकांतता निश्चित नहीं होती, यानी सब जगह पे यह बात सिद्ध नहीं हो सकती। जो तुमने आगे के सूत्र में सिद्ध किया, पूर्व पक्षी ऐसा कहते हैं कि वो बात सब जगह पर सिद्ध नहीं हो सकती। प्रायः जीव और ब्रह्म दोनों के गुणों के विधायक वाक्य समान रूप से प्राप्त होते हैं, यानी यहाँ पर जो
वेदांत है उसमें जीव और ब्रह्म दोनों के गुण समान रूप से दिखने में आए, ऐसे ही वाक्य ज्यादातर दिख रहे हैं। तो तुम जो आपने जो ऊपर कहा वो बात यहाँ पर सब जगह पर हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो यह यहाँ पर संदेह उपस्थित किया गया पूर्व के सूत्र के संदर्भ में। तो उसका यहाँ पर अब जवाब दे रहे हैं, अनुपपत्ति तू न शारीरः। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं किस प्रकार से उसका निराकरण किया जा रहा है कि प्राण शरीर रूप वाला जीव नहीं होता। यानी क्या कि जीव तो भगवान का चिदंश है, तो उसको तो कोई शरीर ही नहीं है, वो केवल चिदंश ही है। तो आप ऐसा बोल रहे हो कि प्राण शरीर से विज्ञानमय को लेना चाहिए, विज्ञानमय जीव को लेना चाहिए, लेकिन जीव को तो शरीर ही नहीं होता है। प्राण शरीर न शरीर, जीव को तो शरीर ही नहीं होता है। छिपे हुए आनंद और निराकार होने से केवल अध्यास के आधार पर जीव में वैसी अहंता संभव नहीं है। तो एक तो तिरोहित आनंद है जीव और निराकार है, और उसने जो शरीर धारण किया है वो तो अध्यास के बल पर धारण किया हुआ है। उसको तो सब पूरे जो देह के देहाध्यास, प्राणाध्यास, इंद्रियाध्यास, उस प्रकार का अध्यास रूप उसका देह है, उसका शरीर है। तो उसमें वैसी अहंता संभव नहीं है। किस प्रकार की के मनोमय प्राण शरीर वाली अहंता उस जीव में संभव नहीं हो सकती, क्योंकि वो तो अध्यस्त शरीर वाला है, इसलिए। और इसलिए उसका अनुपास्यत्व तो निश्चित ही है। अब उसको ऐसे जो जीव का शरीर ही नहीं है उसको आप उपास्य कैसे बोल रहे हो कि यहाँ पर जीव की उपासना का विषय चल रहा है, ऐसा आप कैसे बोल सकते हो? नहीं ही बोला जा सकता। फिर आगे कहते हैं, जिस प्राण के उपास्यत्व की चर्चा है वह लौकिक प्राण वायु संबंधी नहीं है। तो मनोमय प्राण शरीर, उसमें जो प्राण शब्द है वो कोई हमारे देह में जो प्राण वायु है ऐसा कोई प्राण की यहाँ पर बात नहीं है। जीव को प्राण शब्द मात्र से संबोधित किए जाने से उपास्य नहीं कहा जा सकता। क्यों नहीं कहा जा सकता? क्योंकि वह जीव उपासक कहा गया है। तो कहीं कहीं पर विज्ञानमय प्राण को विज्ञानमय कहा गया है, पर इतना कहने से उसको उपास्य नहीं कहा जा सकता, क्योंकि पूरे वेदांत में जीव को उपासक कहा गया है, उसको उपास्य नहीं कहा गया है। जीव तो उपासना करने वाला है और उपास्य कोई दूसरा है। तो उसको आप कहीं प्राण को जीव को प्राण शब्द ऐसा बोलने से वह उपास्य नहीं हो सकता, क्योंकि वेदांत में उसको उपासक कहा गया है। वही उपास्य रूप हो ऐसा संभव नहीं है। तो जीव को उपासक कहा गया है, और उसको यदि आप उपास्य कहोगे तो उपास्य और उपासक एक हो जाएंगे। तो यदि उपास्य और उपासक को एक मान लेंगे तो उपासना का प्रवचन निरर्थक हो जाएगा। तो फिर उपासना का प्रवचन किसे दिया जा रहा है यदि दोनों एक ही है? तो इस प्रकार से जीव की उपासना का यहाँ पर कोई संदर्भ ही नहीं है। जीव में आनंद रूप प्राण शरीरत्व का अभाव है, और जीव में तो शरीर है ही नहीं। तो जीव को तो शरीर ही नहीं है, तो आप तो मनोमय प्राण शरीर से जीव को कह रहे हो, तो ऐसा शरीर तो हो ही नहीं सकता है, उसका तो अभाव है। इसलिए उक्त वाक्यार्थ जीव परक नहीं हो सकता। तो वह जो वाक्य लेकर के जो पूरा यह प्रथम का पाद का पहला सूत्र जो आ रहा है, तो वो वाक्य में जो मनोमय प्राण शरीर है वो जीव परक नहीं हो सकता। अब सूत्र का तू शब्द पूर्व पक्ष का निवारक है, अनुपपत्ति है तू। तो तू से पूर्व पक्ष का निराकरण किया जा रहा है। किस प्रकार से किया जा रहा है कि विज्ञानमय के प्रसंग में तो धर्म की ही उपासना का विषय है, उसमें प्राप्त अप्राप्त का विवेक किया जाए तो ऐसा ही निर्णय होता है। तो विज्ञानमय के प्रसंग में, तो विज्ञानमय का प्रसंग क्या है कि अर्थात बताते हैं कि अर्थात विज्ञानम आनंदम ब्रह्म और विज्ञानम यज्ञम तनुते इत्यादि में ब्रह्म और जीव को विज्ञान स्वरूप कहा गया है। तो इन लोगों ने किस प्रकार से अंतर्यामी को जीव परक कहा कि विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, इसमें भी
ब्रह्म को विज्ञानमय कहा गया है और विज्ञानम यज्ञम तनुते उसमें जीव को विज्ञान स्वरूप कहा गया है। तो इस आधार पर वो लोग ऐसा बोलते हैं कि जीव विज्ञानमय विज्ञानमय को क्योंकि वहां पर ये निराकरण नहीं हो रहा है कि विज्ञानमय ब्रह्म है या विज्ञानमय जीव है, इसलिए उन्होंने यह वाक्य जीव परक लिया है, क्योंकि दोनों के लिए विज्ञानमय शब्द प्रयुक्त किया गया है। तो इत्यादि में ब्रह्म और जीव को विज्ञान स्वरूप कहा गया है, परंतु इस विज्ञान स्वरूप को प्राप्त नहीं किया गया कहा गया। बात तो सही है कि दोनों को विज्ञानमय कहा गया है, लेकिन प्राप्तव्य विज्ञानमय है ही नहीं, विज्ञानमय प्राप्तव्य है ही नहीं, अपितु उनके आनंद धर्म को प्राप्त कहा गया है। तो प्राप्त और अप्राप्त का विवेक किया जाए यदि, तो इस शंका का समाधान किया जा सकता है कि यदि तुम आनंद मनोमय प्राण को यदि विज्ञानमय कहोगे तो विज्ञानमय को तो प्राप्तव्य नहीं कहा गया है, तो प्राप्तव्य नहीं कहा गया होने से वो तो उपास्य भी नहीं होता, क्योंकि प्राप्तव्य जो होता है वो उपास्य होता है, तो वो प्राप्तव्य नहीं है, इसलिए वो उपास्य भी नहीं है। लेकिन उनके आनंद धर्म को प्राप्तव्य कहा गया है, तो आनंद धर्म जिसका है उसको उपास्य कहा जाएगा। तो आनंद धर्म तो आनंदमय का है, अंतर्यामी का है, तो उसकी उपासना का ही यहाँ पर प्रसंग उपस्थित होता है। और जीव को तो ऐसे भी शरीर नहीं होता है, इसलिए उसकी उपासना भी नहीं होती है और जीव को प्राप्तव्य भी नहीं कहा गया है। तो इस दो प्रकार से यहाँ पर जीव शब्द का निराकरण, यहाँ पर जीव अर्थ का निराकरण यहाँ पर इस सूत्र में किया गया है। और आगे इस अधिकरण का चौथा सूत्र है, उसमें यह इस प्रकार का पूर्व पक्ष आ रहा है कि आनंद स्वरूप को ही प्राप्तव्य कहा गया है। तो ऊपर जो कहा कि विज्ञानमय को तो प्राप्तव्य कहा नहीं गया है, तो आनंद स्वरूप को प्राप्तव्य कहा गया है, जो कि फला अभिप्राय से हो। यानी ये लोग फिर से यही बोल रहे हैं कि यह जो वाक्य है वो जीव परक है और जीव की उपासना करने से उसका जो आनंद गुण धर्म है उसको फल रूप से कहा गया है। तो आप लोग ऐसा समझो, यदि हम ऐसा समझे तो इस प्रकार का यहाँ पर संशय उपस्थित हो रहा है। तो इस संशय का भी परिहार कर रहे हैं, कर्म कर्तृ व्यपदेशात च। तो इससे यह बता रहे हैं कि एतमितः प्रेत्याभि संभवितास्मि इत्यादि के आगे फल वाक्य है। तो जीव की उपासना की संभावना को नकारने के लिए आगे फल वाक्य आ रहा है। तो फल वाक्य क्या है कि जिसमें प्राण शरीर को कर्मत्व, ध्येयत्व और उपास प्राप्तव्य रूप से दिखलाया गया है। तो प्राण धारण प्राण रूपी अंतर्यामी को वहां पर जो फल वाक्य है उसमें प्राप्तव्य बता गया है, और उस अंतर्यामी के लिए यानी ये जो बात आ रही है उसके आगे जो फल वाक्य है उसमें यह कहा गया है कि प्राण शरीर कर्म करने वाला है, तो वो उसका कर्तृत्व, फिर उसका ध्यान करना चाहिए, तो वो ध्येयत्व और वही प्राप्तव्य है, ऐसा उस रूप से दिखलाया गया है। तो भजनीय तत्व है, उससे एकत्व की प्राप्ति की बात कैसे संगत हो सकती है। तो यहाँ प्राण शरीर को ही ऐसे ध्येयत्व और प्राप्यत्व के रूप में बताया गया है, तो फिर जीव को तुम किस प्रकार से उपास्य बता सकते हो, क्योंकि प्राप्तव्य तो यहाँ पर प्राण शरीर को बताया है। तो फिर भजनीय तत्व और उसके उपासक यानी उपास्य और उपासक की बात कैसे संगत हो सकती है। तो यह बात कोई भी प्रकार से संगत नहीं हो सकती है। तो चकार के प्रयोग में बतलाया गया है, चकार का प्रयोग अधिकरण की पूर्णता का द्योतक भी है। तो कर्म कर्तृ व्यपदेशाच, तो कर्म कर्तृ जो जीव है उसका व्यपदेश होने से, किससे व्यपदेश होने से, तो प्राण शरीर वाला जो अंतर्यामी है उससे कर्मकर्ता का व्यपदेश हो रहा है, क्योंकि उसको प्राप्तव्य नहीं बताया गया है, उसको ध्येयत्व नहीं बताया गया है, उसको उसकी कर्म कर्तृता नहीं बताई गई है फल प्रकरण में। तो इस प्रकार से कर्मकर्ता का व्यपदेश होने के कारण भी यहाँ पर अंतर्यामी को ही
मनोमय प्राण शरीर से लेना चाहिए, यह बात चकार से भी सिद्ध हो गई है और चकार से यहाँ पर यह पहला अधिकरण पूर्ण होता है राजा। तो यह पहला अधिकरण यहाँ पर संपन्न हुआ, तो दूसरा भी मुझे ही करना है, तो मैं करती हूँ राजा। हाँ करो शुरू, जितना होगा उतना आज कर लो, नहीं तो कोई बात नहीं, फिर नेक्स्ट वीक में उसे कंटिन्यू कर लेंगे। ये जो बात हुई वो थोड़ी बहुत मैंने बराबर की कि नहीं की सब कुछ? नहीं एकदम एकदम अच्छा। हाँ तो ठीक है। तो बहुत डर लग रहा है। नहीं डरने की कोई बात नहीं है, मैंने पहले भी ये बात कही थी ना कि प्रस्तुति वालों के लिए, सबके लिए ब्रह्मसूत्र की सबसे सरलता यही है कि हर वाक्य का मतलब ब्रह्म निकलना चाहिए। तो अब अगर सीधा सीधा नहीं निकल रहा है तो टेढ़ा होके निकल जाएगा, पर ब्रह्म निकलना चाहिए। तो कंक्लूजन हमें पता है, इसलिए डर नहीं लगता है। अल्टीमेटली वो निकलना चाहिए कि ब्रह्म निरूपक है, बस इतना कह देंगे तो सब ठीक हो जाता है अपने आप। लेकिन महाप्रभु जी को न्याय तो दिया कि नहीं दिया पता नहीं। नहीं एकदम दिया, एकदम बिल्कुल, बहुत अच्छा। ठीक है चलो, तो फिर आगे द्वितीय अधिकरण आगे का। हाँ राजा, प्रणाम राजा। आगे का द्वितीय अधिकरण अभी शुरू करती हूँ। उसमें मेरी मति से मैं कर रही हूँ, तो उसमें उसका पहला सूत्र है शब्द विशेषार्थ। तो द्वितीय अधिकरण का जो विषय है वो मैंने वेदांत अधिकरण माला में से लिया है, लेकिन जो सूत्र है उसकी कंटिन्यूटी में ये विषय आ रहा है, तो ये सूत्र में ही वह बात कंक्लूड हो जाएगी, इसलिए वेदांत अधिकरण माला में से मैं नहीं पढ़ रही हूँ। तो उसमें शब्द विशेषार्थ, यह उस अधिकरण का नाम भी शब्द विशेषार्थ है और उसका द्वितीय अधिकरण का पहला सूत्र भी शब्द विशेषार्थ है। तो उसमें ऐसा कहा गया है कि ऐसा उपनिषद, उसको पहला विषय वाक्य हम देख लेते हैं कि ऐसा उपनिषद वाक्य है, मतलब विषय वाक्य यह है कि जैसे व्रीहि यव श्यामक या श्यामाक तंडुल है, वैसे ही बीज रूप से यह अंतर्यामी पुरुष हिरण्यमय है। इस पर संशय होता है, तो यह प्रकार का विषय वाक्य है कि विषय वाक्य क्या है कि जो अंतर्यामी है उसको यहाँ पर हिरणमय कहा गया है। यह किस प्रकार से? बीज रूप से, यानी इसका उसको इस प्रकरण को ऐसे समझना चाहिए कि इसके आगे के अधिकरण में जीव परक, अंतर्यामी की जीव परकता का निराकरण किया गया, मतलब मनोमय प्राण शरीर की जीव परकता का निराकरण किया गया, और यहाँ पर उसको हिरणमय रूप से भी स्थापित कर रहे हैं, मतलब अंतर्यामी रूप से स्थापित कर रहे हैं। वहां पर ये बात अंतर्यामी भी की ही चल रही है, वहां पर जीव से उसकी निराकरण किया गया है, और यहाँ पर भी उसी प्रकार से उसको अंतर्यामी रूप से स्थापित किया जाएगा, क्योंकि वेदांत अधिकरण माला में पुरुषोत्तम जी ने यह बताया है कि वाक्य का अर्थ जीव परक न होकर, मतलब यह प्रकरण जीव का है, तो अंतर्यामी रूप से और जीव रूप से यहाँ पर ब्रह्म को स्थापित करना है, यह बात यहाँ पर बताई गई है। तो आगे जीव को ब्रह्म रूप से स्थापित किया गया, अब अंतर्यामी को भी, हिरणमय को भी अंतर्यामी रूप से स्थापित करेंगे। इस प्रकार से दो अधिकरणों का संदर्भ हो रहा है। तो ये विषय वाक्य यहाँ पर उपस्थित हुआ है। अब उसके ऊपर संशय होता है कि यह हिरण्यमय पुरुष जीव है या ब्रह्म। जो हिरणमय जो पुरुष है वो उसको जीव समझना कि ब्रह्म समझना। तो क्यों ऐसा संशय उपस्थित हो रहा है वह समझा रहे कि यदि प्रकरण के उपक्रम की श्रेष्ठता से माने तब तो जीव समझ में आता है। जो प्रकरण यहाँ पर चल रहा है वो जीव का प्रकरण चल रहा है, तो उसका उपक्रम देखा जाए तब तो यह जो हिरणमय है उसको जीव समझना चाहिए, और यदि उपसंहार की श्रेष्ठता मानते हैं तो ब्रह्म समझ में आता है। तो अब इसको क्या समझना, हिरणमय को जीव समझना कि ब्रह्म समझना? अब उसको एक बात महाप्रभु जी ने यह उसका बताया कि पूर्व मीमांसा के अनुसार तो उपक्रम आदि समस्त के अनुसार वाक्य की एकार्थता होती है, उसे ही श्रेष्ठ मानते हैं। तो उपक्रम उपसंहार को एक करके जो अर्थ निकलता है उसे ही श्रेष्ठ मानना चाहिए। लेकिन पूर्व पक्ष जो है वो अलग प्रकार से बात सोच रहा है। तो वो क्या कह रहे हैं कि उक्त प्रकरण में 4 प्रकार के भूत समुदाय के निरूपण के लिए जीव के ही सूक्ष्मतम स्वरूप का हृदयांतरवर्ती रूप से प्रतिपादन किया गया है।
तो यह जो जीव प्रकरण है उसमें 4 प्रकार के भूत समुदाय का निरूपण है। तो ये जीव प्रकरण है, तो उसमें जीव की ही सूक्ष्मता को हृदयांतरवर्ती रूप से यानी बीज रूप से प्रतिपादित किया गया है। इसकी इस प्रकार की उपासना के फल स्वरूप हिरणमयता प्राप्त होती है, यही दिखलाया गया है। तो ये जो विषय वाक्य है उसका अर्थ पूर्व पक्ष वाले ये कर रहे हैं कि जीव का ही कोई सूक्ष्मतम स्वरूप हृदयांतरवर्ती है और उसकी उपासना करनी है और उससे हिरणमयता प्राप्त होती है यानी आनंदमयता प्राप्त होती है। तो इस प्रकार यहाँ पर जीव के सूक्ष्म रूप से की उपासना का प्रकरण चल रहा है, क्योंकि ये जीव का प्रकरण है। तो उपक्रम से देखते हैं तो यह बात उपस्थापित हो रही है, पूर्व पक्ष वाले कर रहे हैं। इस प्रकार की भास मानता ब्रह्म की मानना संगत नहीं है, क्योंकि ये तो देखते ही है कि ये शंकराचार्य का को ही महाप्रभु जी काउंटर कर रहे हैं। तो शंकराचार्य जी को जगत को भी मिथ्या मानते हैं, तो वो ब्रह्म हमारे अंदर अंतर्निहित रूप से होता है, वो कैसे कभी भी स्वीकार करने वाले नहीं है। तो इसलिए वो जीव परक इसको मान रहे हैं अंतर्यामी को। इस प्रकार की भास मानता ब्रह्म की मानना संगत नहीं है, क्योंकि वो लोग तो मिथ्या मानते हैं सब। तो इस प्रकार की उटपटांग बात ये लोग करते हैं। तो उसका अभी उत्तर पक्ष में समाधान दिया गया है कि उक्त मत पर सिद्धांत रूप से शब्द विशेषात सूत्र प्रस्तुत करते हैं। तो शब्द विशेषात सूत्र से पूर्व पक्ष का खंडन किया जाएगा। तो शब्द विशेषात, तो जो अंतर्यामी है उसके लिए विशेष रूप से हिरणमय शब्द का प्रयोग किया गया है, ये बात आती है। हिरणमय की आनंदमयता अन्य प्रकरणों में बताई गई है और उसे ही प्राप्य कहा गया है। तो वही उसकी फलता है, इसलिए जीव को इस रूप में नहीं माना जा सकता। तो शब्द विशेषात, तो हिरणमय की आनंदमयता यानी हिरणमय को ही अंतर्यामी रूप से आनंदमय रूप से बताया गया है। तो शब्द विशेष इस प्रकार से आता है कि हिरणमय जो है वही अंतर्यामी है, वही आनंद रूप है और उसको ही प्राप्तव्य कहा गया है और उसकी उपासना बताई गई है। इसलिए यहाँ पर जीव को नहीं लेना चाहिए, क्योंकि शब्द विशेष के रूप में हिरणमय को अंतर्यामी रूप से बताया गया है। ऐसा नहीं मान सकते कि जीव उस आनंदमय ब्रह्म में लीन हो जाता है। और जो ऊपर पूर्व पक्ष ने ऐसा संदेह इस प्रकार का अर्थ घटन किया कि जीव का कोई सूक्ष्म स्वरूप है, वो उसको हिरणमय कहा जाता है और जीव की उपासना से वह हिरणमय की प्राप्ति होती है। तो ब्रह्मानंद की मतलब आनंद की प्राप्ति होती है, तो उसमें लीन हो जाना है, वह फल है। ऐसा जो पूर्व पक्ष उपस्थित किया गया है उसके सामने महाप्रभु जी कहते हैं कि इतना ही फल नहीं है शास्त्र में, क्योंकि ऐसा शास्त्र में नियम नहीं है। हाँ राजा, सूत्र को जहाँ भी ब्रेक मिले वहां आज का संपन्न कर देना। बस 1 मिनट बस कंप्लीट ही है। हाँ कर लो आराम से, 2-3 मिनट कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो शास्त्र में पूर्व पक्ष ने ऐसा प्रस्तुत किया कि जीव की उपासना से हिरणमय की प्राप्ति होती है, मतलब आनंदमय की प्राप्ति होती है और उसमें लीन हो जाता है। लेकिन क्योंकि ऐसा शास्त्र नियम नहीं है, आनंदमय प्रकरण में सुस्पष्ट रूप से चालोक्य, साष्टी, सामीप्य इस प्रकार की चतुर्विध मुक्ति का उल्लेख है। इस प्रकार शास्त्र में ब्रह्म का विशेष उल्लेख किया गया है, इसलिए हिरणमय पुरुष जीव नहीं है। तो जीव की उपासना से, तो यानी महाप्रभु जी ये कह रहे हैं कि जीव की उपासना से चालोक्य, साष्टी, सामीप्य इस प्रकार की जो शास्त्र में बताई गई मुक्ति है वो तो कभी भी मिलने वाली नहीं है। आनंद चलो प्रकट हो जाएगा, लेकिन उसके आगे भी जो 4 प्रकार की मुक्ति है उसको तो आप यहाँ पर सिद्ध नहीं कर पाओगे। इसलिए यहाँ पर जो हिरणमय शब्द जो है वो अंतर्यामी के अर्थ में लेना चाहिए, जीव के अर्थ में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि और शब्द विशेष से भी यहाँ पर हिरणमय के लिए अंतर्यामी के लिए हिरणमय शब्द का प्रयोग किया है, इसलिए यह जीव परक नहीं हो सकता है। यह बात यहाँ पर इस सूत्र में आई। राजा, यह पहला सूत्र यहाँ पर संपन्न हुआ है। दंडवत प्रणाम राजा, आगे का सोमवार से करेंगे। दंडवत प्रणाम राजा। हाँ सुंदर।